بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے، یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ عاصم منیر نے کی باقر قلیباف سے ملاقات، ٹرمپ کا پیام پہنچایا۔ ایران نے کہا امریکہ کے ساتھ جلد بات چیت ہوگی۔ شہباز شریف سعودی عرب سے دوحہ پہنچے، شیخ تمیم سے ملاقات، قطر اور دوسرے خلیجی ملکوں پر حملوں کی مذمت۔ شہباز شریف انقرہ جائیں گے، پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور ایجپٹ کے فارن منسٹرز جنگ بندی کوششوں پر میٹنگ کریں گے۔ اسرائیل اور لبنان کے لیڈرز کے بیچ 34 سال بعد بات چیت ہوگی، سیز فائر کے لیے نتن یاہو پر دباؤ۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان شدید جھڑپیں، لبنان میں اہم برج تباہ، کئی گھروں کو گرا دیا گیا۔ ویمن ریزرویشن اور ڈی لمیٹیشن سے متعلق دستوری ترمیمی بلز لوک سبھا میں پیش، حکومت اور اپوزیشن کے بیچ تلخ تکرار۔ اپوزیشن بلز کو سیاسی رنگ نہ دے، جن لوگوں نے ویمن ریزرویشن کی مخالفت کی انہیں شکست اٹھانی پڑی، وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ ڈی لمیٹیشن بل سے فیڈرلزم کی خلاف ورزی، کم آبادی والی ریاستوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اسد اویسی کی تقریر۔ جن لوگوں کی اپیلیں ٹریبیونلز میں قبول ہوئیں وہ بنگال الیکشنز میں ووٹ دے سکتے ہیں، سپریم کورٹ کا حکم۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف سے ملاقات کی۔ عاصم منیر اعلیٰ سطح کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ چہارشنبے کو ایران کے دارالحکومت پہنچے۔ اس دورے کا مقصد ایران تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام پہنچانا اور تہران اور واشنگٹن کے درمیان دوسرے دور کی بات چیت کا فریم ورک طے کرنا ہے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مصالحت کی کوششوں میں اہم رول ادا کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جلد بات چیت ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے بھی امید ظاہر کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت جاری رہے گی۔ وائٹ ہاؤس ترجمان نے یہ بھی کہا کہ یہ بات چیت پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہو سکتی ہے۔ جس وقت پاکستان کے آرمی چیف ایران کا دورہ کر رہے تھے، ٹھیک اسی وقت پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ اس طرح امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل جنگ بندی کی امیدیں پیدا ہوئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ ہمیں ڈیل کے امکانات کے تعلق سے اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قلیباف نے امریکہ سے کہا ہے کہ کسی بھی سمجھوتے میں لبنان جنگ بندی کا وعدہ کیا جائے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں باقر قلیباف نے کہا کہ لبنان جنگ بندی ضروری ہے، مزاحمت اور ایران الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے، اور وہ جنگ میں بھی ساتھ ہوں گے اور سیز فائر میں بھی ساتھ ہوں گے۔ ایرانی اسپیکر نے کہا کہ امریکیوں کو اسرائیلی فوج کی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ بات چیت کے تعلق سے اب تک کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ میڈیا اداروں کو بات چیت کے وقت کے تعلق سے قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی کچھ طے ہوگا ہم میڈیا کے ذریعے اعلان کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران کے ساتھ رابطہ بنائے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن چاہتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کئی ملکوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔
पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर पहुंचे। उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल-थानी से मुलाकात की। इस मौके पर खित्ते में अमन इस्तेहकाम और तनाव में कमी पर जोर दिया गया। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर पाकिस्तान की तरफ से कतर और दूसरे खलीजी मुल्कों पर हमलों की मजम्मत की। उन्होंने कतर के अवाम से यकजहती का इजहार किया। मुलाकात के बाद एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि दोनों लीडर्स ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए तनाव कम करने की कोशिशों पर जोर दिया। इस मुलाकात में एनर्जी सप्लाई जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया गया। शहबाज शरीफ और शेख तमीम के दरमियान वन ऑन वन मुलाकात भी हुई। कतर के अमीर ने पाकिस्तानी डेलीगेशन के लिए लंच का एहतमाम किया। शहबाज शरीफ ने कतर की मेज़बानी की तारीफ की जिसने उनके हवाई जहाज़ की निगरानी के लिए हवाई जहाज़ भेजे थे। इससे पहले शहबाज शरीफ ने जद्दा में सऊदी क्राउन प्रिंस से ईरान अमरीका तनाव, खित्ते के हालात और आपसी ताल्लुकात के बारे में बातचीत की। उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर जद्दा का दौरा किया। इस मुलाकात के मौके पर अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत में सहूलत पैदा करने के बारे में ख्यालात का तबादला किया गया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सुलह की कोशिशों की तारीफ की। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA ने एक वीडियो फुटेज जारी किया जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों लीडर्स बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स फैसल बिन फरहान और इसहाक डार भी हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा के एडवाइज़र भी इस मौके पर मौजूद थे। शहबाज शरीफ के दौरे के मौके पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन मदद का ऐलान किया। हाल ही में UAE की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव था कि वो उसका कर्ज वापस लौटाए, जिससे पाकिस्तान पर माली दबाव था, लेकिन सऊदी अरब की इस मदद से उसका बोझ कम हुआ है। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर सऊदी अरब की तायीद का ऐलान किया। दोनों मुल्कों के दरमियान पिछले साल सिक्योरिटी समझौता हुआ था। शहबाज शरीफ 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। वो कतर से तुर्की जाएंगे जहां वो तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। तुर्की ने जंग खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान तामीरी बातचीत पर जोर दिया है। तुर्की NATO का रुकन है और दोनों मुल्कों के साथ टच में रहते हुए मुसालहतकार पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तुर्क वज़ारत दिफा ने अपनी हफ्तेवार ब्रीफिंग में कहा कि हम सीज़ फायर को मुस्तकिल शक्ल देने के लिए तमाम ज़रूरी कदम उठाएंगे। तुर्क सोर्सेस ने बताया कि अंतालिया में डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग होगी। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा है कि अमेरिका इसराइल का 7वां ज़िला बन गया है। उन्होंने अमेरिका में इसराइल का असर और रसूख का हवाला देते हुए अमेरिका की पॉलिसियों का मजाक उड़ाया। एक बयान में ईरानी लीडर ने कहा कि वाइट हाउस के लीडर्स अमेरिका फर्स्ट का ढिंडोरा पीटने के बाद अमलन इसराइल का 7वां ज़िला बन गए हैं। अमेरिका के अवाम मुतमईन नहीं हैं और अपने मुल्क में आज़ादी ना होने की शिकायत कर रहे हैं। अमेरिका की नाकाबंदी के बावजूद दूसरा जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हुए खलीज पहुंचा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि 10 जहाज़ों को वापस भेजा गया और किसी भी जहाज़ ने पीर के बाद से नाकाबंदी नहीं तोड़ी, लेकिन फार्स न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि ईरान का एक सुपर टैंकर जिस पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थीं आबनाए हुर्मुज़ को पार किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के सदर जोसेफ औन के दरमियान अब से कुछ देर बाद सीज़ फायर के बारे में बातचीत होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की। हाल ही में दोनों मुल्कों के सफ़ीरों की अमेरिका की दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में मुलाकात हुई थी। इसराइली कैबिनेट के एक रुकन ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कई बरसों में पहली बार लेबनान के सदर से बातचीत करेंगे। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस कदम से आखिरकार खुशहाली आएगी। 34 साल बाद इसराइल और लेबनान के लीडर्स के दरमियान बातचीत हो रही है। लेबनान के सदर जोसेफ औन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत से पहले जंगबंदी की अहमियत पर जोर दिया। लेबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई भी जारी है। हिजबुल्लाह ने पिछले कुछ घंटों में इसराइली फ़ौज पर कई हमले किए। लेबनान की न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि हिजबुल्लाह फाइटर्स और इसराइली सिपाहियों के बीच बिन्त जुबैल टाउन में शदीद लड़ाई हो रही है। लेबनान की सरकारी मीडिया में कहा गया कि इसराइल ने 2 हमलों में कासिमिया ब्रिज को निशाना बनाया। इसराइल ने दावा किया कि वो हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है। इसराइल ने बाद सरहदी देहातों और टाउन्स में कई घरों को गिरा दिया। लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों के बाद कई जगह धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। 2 मार्च को हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग शुरू होने के बाद से इसराइल के हमलों में लेबनान में 2100 लोग जाँ बहक हुए हैं।
लौटते हैं इंडिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन से कहा है कि वो विमेन रिजर्वेशन कानून पर अमलावरी के लिए हुकूमत के बिल्स को सियासी रंग ना दें। उन्होंने खबरदार किया कि अपोजिशन ये बात याद रखे कि जिन लोगों ने माजी में इनकी मुखालफत की, इलेक्शन में बुरी तरह से शिकस्त उठानी पड़ी। डिलिमिटेशन के बारे में अंदेशों को दूर करने की कोशिश करते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि ईस्ट हो या साउथ या नॉर्थ, किसी भी रियासत के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लोकसभा में विमेन रिजर्वेशन कानून में तरमीम के लिए मंजूरा 3 बिल्स पर बहस के दौरान मुदाखलत करते हुए मोदी ने कहा कि अगर तमाम जमातें बिल्स की तायीद करें तो ये मुल्क के लिए एक एहसान होगा। मोदी ने कहा कि विमेन रिजर्वेशन बिल से भेदभाव नहीं होगा और ये जमहूरियत के हक़ में है। उन्होंने कहा कि तमाम जमातें 131वीं तरमीम बिल की मंजूरी को यकीनी बनाएं। विमेन रिजर्वेशन बिल पर 2029 से अमल करने के मकसद से दस्तूरी तरमीमात या अमेंडमेंट्स के लिए पार्लियामेंट का 3 रोज़ा खुसूसी सेशन बुलाया गया है। आवश्यकता तो ये थी कि 25-30 साल पहले जब से विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई, हम इसको लागू कर देते और हम आज उसको काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते और आवश्यकता के अनुसार उसमें समय समय पर सुधार भी होते हैं और यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी होती है। हमारी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है और उस विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ने का एक शुभ अवसर सदन के हम सभी साथियों को मिला है। इससे पहले 40 मिनट की बहस के बाद बिल्स पेश किए गए। अपोजिशन ने दस्तूरी तरमीमी बिल पेश करने के लिए वोटों की तकसीम पर जोर दिया। बाद में बिल पेश किया गया। 251 अरकान ने इसकी तायीद की और 185 अरकान ने इस बिल की पेशकशी के खिलाफ वोट दिया। लोकसभा में बिल्स की पेशकशी के दौरान जबरदस्त ड्रामा हुआ और तल्ख बहस हुई। कांग्रेस रुकन के.सी. वेणुगोपाल ने 131वीं तरमीम की पेशकश की मुखालफत की। उन्होंने डीलिमिटेशन बिल और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से मुताल्लिक़ कानून के तरमीमी बिल की भी मुखालफत की। वेणुगोपाल ने कहा कि मैं वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल और वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से पेश किए गए बिल्स की मुखालफत करता हूँ। अर्जुन राम मेघवाल ने बिल्स पेश करते हुए कहा कि ये तारीखी बिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत औरतों को सियासी इंसाफ देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 131वीं दस्तूरी तरमीमी बिल से औरतों के लिए बराबरी को यकीनी बनाया जा सकेगा। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी पार्टी विमेन रिजर्वेशन बिल के हक़ में है, लेकिन उसे सादा बनाना चाहिए और उसे डीलिमिटेशन से नहीं जोड़ना चाहिए। सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि डीलिमिटेशन बिल से फेडरलिज्म की खिलाफ वर्जी होती है और इससे कम आबादी वाली रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि इस बिल के ज़रिए साउथ पर हुकूमत करने की कोशिश की जा रही है और ओबीसी नुमाइंदगी को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। असद ओवैसी ने कहा कि ये बिल विमेन रिजर्वेशन के लिए नहीं है। इसका असल मकसद साउथ पर हुकूमत करना और लेजिस्लेचर से ओबीसी की नुमाइंदगी को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त करना है। लोकसभा में खिताब करते हुए असद ओवैसी ने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल ने जो बिल पेश किए हैं उनसे दस्तूर के बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी होती है। उन्होंने कहा कि फेडरलिज्म या वफाकियत दस्तूर के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। डीलिमिटेशन को डिफ्रीज करते हुए ज़्यादा आबादी वाली रियासतों को ज़्यादा सीटें दी जा रही हैं, जबकि छोटी रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और उन्होंने कहा कि वो 131वीं तरमीम और डीलिमिटेशन बिल की मुखालफत करते हैं। सर, I oppose this introduction of this constitutional amendment bill because it violates the parliamentary form of democracy and federalism, which are both parts of basic structure of the Constitution, sir. Sir, this is not about the one reservation. The main goal is to make South rule and other areas ruler and completely erase the representation of OBCs and Muslims from the elected legislature. Sir, federalism is the basic structure of the Constitution. By removing the delimitation freeze, it gives more seats and power to larger population while denying a fair voice to smaller population. This again is a violation of federalism, which is part of basic structure, sir. Sir, the Hindi heartland has 38.1%
it will increase to 43.1. Southern states will decrease from 24 to 20%. Sir, why I say it is complete destruction of federalism? It also curtails parliamentary democracy. Parliament democracy has to be representative of, if a voter in Telangana feels that their voting or not makes no difference, if decisions are taken in UP rather than parliament, why will they vote? Thirdly, sir, it violates our own direction 19A2. Minister has to give 7 days notice of motion for introducing a bill in this house. Similar copies of the bill have to be introduced, need to be given to members 2 days before the introduction. Third, sir, this is a clear violation of 123B of RP Act 1951 to 1 week before voting. I call this a corrupt practice, sir. I will be asking for a division of this bill, sir, and I end by what Sahir Ludhiani had said. यहाँ पर गरीबों से मतलब जुनूबी हिंद के लोग, मुसलमान और ओबीसी, इसका साहिर लुधियानी ने कहा सर, शहंशाहों के गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स ने जिन लोगों की अपीलें कबूल की हैं वो वेस्ट बंगाल के आने वाले असेंबली इलेक्शंस में वोट देने के अहल होंगे। सुनवाई के 3 दिन बाद अपलोड किए गए हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इस बात को यकीनी बनाया कि अहल वोटर्स को इलेक्शन के अमल से अलग ना किया जाए। चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम निकालने के खिलाफ अपीलों के बारे में फैसले के लिए 19 ट्रिब्यूनल्स कायम किए हैं। अदालत ने कहा कि अगर अपील कबूल की गई है और नाम शामिल करने की हिदायत दी गई है तो ऐसे वोटर्स को 23 और 29 अप्रैल के इलेक्शंस में वोट देने की इजाज़त देनी चाहिए। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि विमेन रिजर्वेशन कानून में तरमीम से मुताल्लिक बिल्स और डीलिमिटेशन कमीशन NRC पर अमलावरी और वोटर लिस्ट से नामों को निकालने की साजिश है। कोच बिहार में इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया को बांटने की कोशिशें की जा रही हैं। इंडिया और ऑस्ट्रिया ने डिफेंस, टेक्नोलॉजी, तालीम, तहजीब और तिजारत जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर के दरमियान दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। इसके मौके पर समझौतों पर दस्तखत किए गए। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ कारआमद मुलाकात की। उन्होंने अपनी बातचीत में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, टेक्नोलॉजी, तालीम और नौजवानों के तबादलों पर बातचीत की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। 25 और 26 अप्रैल के रोज सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के अंदर ये हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 26 का क़याम अमल में आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से यही ख्वाहिश करूँगा कि आप इसके अंदर हिस्सा लें और तालीम के अंदर लोगों की और इसके अंदर हिम्मत अफजाई हो सकती है। एक अच्छा शऊर बेदारी का भी एक ज़रिया है। ये अच्छा काम है, तालीम के लिए काम कर रहे हैं और मैं जो भी जिम्मेदारान ये तालीम के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। आसिम मुनीर ने की बाकर कलीबाफ से मुलाकात, ट्रंप का पैगाम पहुंचाया। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ जल्द बातचीत होगी। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से दोहा पहुंचे, शेख तमीम से मुलाकात। कतर और दूसरे खलीजी मुल्कों पर हमलों की मजम्मत। शहबाज शरीफ अनकरा जाएंगे। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर जंगबंदी कोशिशों पर मीटिंग करेंगे। इसराइल और लेबनान के लीडर्स के बीच 34 साल बाद बातचीत होगी। सीज फायर के लिए नेतन्याहू पर दबाव। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान शदीद झड़पें। लेबनान में अहम ब्रिज तबाह, कई घरों को गिरा दिया गया। वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन से मुताल्लिक दस्तूरी तरमीमी बिल्स लोकसभा में पेश। हुकूमत और अपोजिशन के बीच तल्ख तकरार। अपोजिशन बिल्स को सियासी रंग ना दे। जिन लोगों ने वुमेन रिजर्वेशन की मुखालिफत की उन्हें शिकस्त उठानी पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। डिलिमिटेशन बिल से फेडरलिज्म की खिलाफ वर्जी, कम आबादी वाली रियासतों के साथ नाइंसाफी होगी। असद ओवैसी की तकरीर। जिन लोगों की अपीलें ट्रिब्यूनल्स में कबूल हुई वो बंगाल इलेक्शंस में वोट दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म।
یہ تھی آج کی خبریں. شجول افراست کو دی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.